Hello everyone. Today's our topic is computer and its component. So first we understand what is computer. Computer is derived from the Latin word computere, which means to calculate. It is an electronic device that is designed to work with the information. Charlie Babbage was the first who made the computer. After that, he is known as the father of the computer. So what is computer? Computer is an advanced electronic device that takes the raw data as input from the user and process that data under the control set of instruction and give the result, and also the save the output for the future use. Computer can process both data numerical as well as non-numerical. So next we take as what is the components of the computer. Basically there are the three components of the computer. First one is input unit, second one is central processing unit. Central processing unit itself consists of again three units: memory unit, arithmetic logical unit, and control unit. And third one is the output unit. One by one we discuss the functions of each unit. So first we take as the input unit. This is the arrangement of the various unit in the computer system, or we can say the model of your digital computer. तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, input unit. तो first we understand what is input unit. Input unit क्या करता है हमारे पास. Input unit contain the device with the help of which we can enter the data in the computer. एक्चुअली ये यूनिट क्या करता है, यूज़र और कंप्यूटर के बीच में एक इंटरफेस का काम करता है. यूज़र जो भी डाटा ट्रांसफ़र करेगा वो ह्यूमन बीइंग लैंग्वेज में होगा, और लेकिन जो कंप्यूटर लैंग्वेज अंडरस्टैंड करेगा दैट इज़ बाइनरी लैंग्वेज, 0-1 फॉर्म लैंग्वेज में करेगा अंडरस्टैंड. सो जो ह्यूमन बीइंग इंफॉर्मेशन को ट्रांसलेट करता है इन द कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में, दैट इज़ योर इनपुट डिवाइस. Various input devices are, for example, keyboard, mouse, joystick, floppy drive, OMR, sheet, वॉइस रिकॉग्नाइज़र. तो ये सब हमारे पास क्या है, इनपुट डिवाइसेस. तो फंक्शंस ऑफ इनपुट डिवाइसेस क्या हुआ. फर्स्ट इज़ कि यूज़र से डाटा और इंस्ट्रक्शन को वो एक्सेप्ट करेगा. सेकेंड वन इज़ जो एक्सेप्ट किया यूज़र से डाटा और इंस्ट्रक्शन उसको कन्वर्ट करेगा कंप्यूटर एक्सेप्टेबल लैंग्वेज में. थर्ड वन इज़ कि जो भी उसने कंप्यूटर एक्सेप्टेबल लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया उसको कंप्यूटर सिस्टम को सप्लाई करेगा फर्दर आगे प्रोसेसिंग के लिए. ठीक है. सो इट लिंक बिटवीन द यूज़र, मतलब आउटसाइड वर्ल्ड विद द कंप्यूटर. So this is all about key functions of input unit. Next we consider output unit. So what is output unit? Output unit consists of the devices with the help of which we get the information from the computer. Again output unit क्या करता है, link between the computer and the user, accept the इंफॉर्मेशन एंड डाटा फ्रॉम द कंप्यूटर सिस्टम जो कि हमारे पास बाइनरी लैंग्वेज में होती है, और उसको फिर कन्वर्ट करता है ह्यूमन लैंग्वेज में. सो और जो ह्यूमन लैंग्वेज में कन्वर्टेड इंफॉर्मेशन है दैट रिजल्ट गिव्स टू द यूज़र. सो it again output device is also link between the computer with the user. Next, CPU. CPU is considered as brain of the computer. CPU perform all type of data processing, for example storing the data, intermediate result को store करना, instruction को store करना, जितने भी operations perform हो रहे हैं उन सबको control करना. So CPU itself consists of the three units. First one is control unit, next one is arithmetical logical unit, and next one is
memory unit. तो one by one we understand. First one is control unit. कंट्रोल यूनिट एज इसके नाम में ही है कि इट कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर. एक्चुअली खुद ये डाटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन खुद परफॉर्म नहीं करता, सिर्फ उस डाटा प्रोसेसिंग को कंट्रोल करता है कि ट्रांसफ़र ऑफ डाटा एंड इंस्ट्रक्शन अमंग द ऑल यूनिट्स आर कंट्रोल्ड बाय द कंट्रोल यूनिट. सभी यूनिट को मैनेज करना, आपस में कोऑर्डिनेशन बना के रखना, दैट आल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंट्रोल यूनिट. मेमोरी यूनिट से इंस्ट्रक्शन को ऑब्टेन करना, उसको इंटरप्रेट करना और फिर डायरेक्ट द ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर, दैट इज़ आल्सो डन बाय द कंट्रोल यूनिट. और इनपुट और आउटपुट यूनिट के बीच में जो कम्युनिकेशन है बाय ट्रांसफ़र ऑफ डाटा या रिज़ल्ट को कंप्यूटर के अंदर या मेमोरी के अंदर स्टोर करना, वहाँ से रिट्रीव करना, दैट इज़ आल्सो controlled by the control unit. Actually it does not process or store the data, it just control the all over operation of the all units. Next one is arithmetic logical unit. Arithmetic logical unit have the two further subsection. First one is arithmetic section, second one is logical section. तो arithmetic section में क्या होगा कि अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न. जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है दैट आर मेड बाय रिपीटेटिव यूज़ ऑफ द दीज ऑपरेशन. और लॉजिकल सेक्शन में क्या परफॉर्म होंगे, लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म होंगे. फॉर एग्जांपल कंपेयरिंग हो गया, कंपेयरिंग में क्या हो गया, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन हो गया, सेलेक्टिंग हो गया, मैचिंग हो गया, डाटा को मर्ज हो गया. तो ये सब ऑपरेशन क्या, लॉजिकल ऑपरेशन. सो दीज और अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन आर परफॉर्म्ड इन द अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट. नेक्स्ट वन इज मेमोरी यूनिट. मेमोरी यूनिट एज इट्स नेम कि क्या करते हैं, डाटा को, इंस्ट्रक्शन को, इंटरमीडिएट रिजल्ट को, सभी को स्टोर करता है. सारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना, और जब भी हमें ज़रूरत हो उसको वापस रिट्रीव करना है तो भी हम कहाँ से करेंगे, हम मेमोरी यूनिट से रिट्रीव करेंगे. तो मेमोरी यूनिट हमारे पास दो टाइप की है कंप्यूटर में. फर्स्ट टाइप इज़ योर प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंड टाइप इज़ योर सेकेंडरी मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी is also known as the main memory, or we can say as a random access memory, or in short form we say it as RAM. जो प्राइमरी मेमोरी है that is not the permanent memory, it is just temporary storage memory. और इसका साइज़ अफेक्ट करता है स्पीड को. अगर साइज़ ज़्यादा है तो स्पीड ज़्यादा होगी, साइज़ ज़्यादा है तो पावर ज़्यादा होगा और कैपेबिलिटी भी ज़्यादा होगी. और सेकेंडरी मेमोरी जो है हमारी वो दैट इज़ परमानेंट मेमोरी है, परमानेंट स्टोरेज प्रोवाइड करती है. नेक्स्ट फंक्शन ऑफ मेमोरी यूनिट क्या क्या होंगे कि जितने भी डाटा और इंस्ट्रक्शन जो भी हमें प्रोसेसिंग के लिए ज़रूरत है उन सबको स्टोर करना. अच्छा, प्रोसेसिंग के इंटरमीडिएट रिज़ल्ट को स्टोर करना, और कंप्लीट प्रोसेस होने के बाद जो रिज़ल्ट है, फाइनल रिज़ल्ट, उसको स्टोर करके रखना. और जब भी हमें नीड पड़े तो आउटपुट डिवाइस पे उसको रिलीज़ करना. दस जो भी इनपुट और आउटपुट में जो भी उनका ट्रांसफ़र ऑफ डाटा या इंस्ट्रक्शन होता है वो किसके थ्रू होता है, मेन मेमोरी के थ्रू होता है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मेन मेमोरी. ये कंप्लीट डिजिटल मॉडल है, हम डिस्क्रिप्शन है. सो हमने देखा भी एनी डिजिटल कंप्यूटर कोई भी ये पांच फंक्शन परफॉर्म कर सकता है. फर्स्ट फंक्शन उसने परफॉर्म किया, इनपुटिंग, मीन्स यूज़र से डाटा को एक्सेप्ट करना एज अ इनपुट.